Hello everyone, how are you all? I am Orpita Hajra, your paper 1 teacher, and we are meeting again. We have discussed about the syllabus of paper 1, and then we had a class also which is about levels of teaching, and today we will learn about Bloom's taxonomy. जैसे हम लोगों ने बात किया था दैट वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विथ ह्यूज मोटिवेशन एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी. सो आप लोगों ने स्टार्ट किया है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर ही दिया होगा क्योंकि जून में एग्ज़ाम होने वाला है. अभी तो जैसे कोविड का केसेस बढ़ रहा है तो लग रहा है कि ऐसे इस सिचुएशन में मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, पर हम लोगों को कम नहीं करना है क्योंकि पढ़ते रहना है. नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है. आप अभी पढ़ो, कल पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो. जैसे हम लोगों ने बात किया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हर रोज़ पढ़ना है. थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ पढ़ो. इससे क्या होगा ना, आपका हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से रिटेन कर पाओगे. क्योंकि इतना ज़्यादा इसका सिलेबस है और क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को ही पता नहीं होता है. क्योंकि कभी क्या होता है ना कि आपको एक टॉपिक में पढ़ा दूँ और बोलूँगी चलो ये क्वेश्चन है, इस यही क्वेश्चन आ जाएगा, पर नहीं. आपको क्या करना है, कंसेप्ट सारे क्लियर करके रखना है, PYQ प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. उससे थोड़ा हम लोगों का आइडिया मिल जाता है किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. तो क्या है, हर रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक को देखते रहना है. ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर थोड़ा थोड़ा हर रोज़ पढ़ना है. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. This is all about me. I am Orpita Hajra and I did my masters in rural management. Then I have cleared my UGC NET in social work in November 2020. Right now I am pursuing MA in sociology from IGNOU, and this is my email ID and this is the channel's email ID. You can mail us to know about our courses. As you all know that courses have start from 1st January. So if you have any query, you can mail in this email IDs, and you can join our Telegram channel also. And this is about the course CP Adab classes. These classes are about paper 1 UGC NET, paper 2 social work, and paper 2 women's studies. If you want to know more about these courses, contact in this number. And the new batch has started from 1st January 2022. So hurry up, just join it, and I promise you that you will be satisfied with our services because every day we will have new classes and lots of discussion, everything. So just join the classes. Now let's start our Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy means what is the meaning of Bloom's taxonomy? What is the meaning of taxonomy? Taxonomy means classification. Why we need to study about Bloom's taxonomy? Because when you are teaching, you need to know about the objective of teaching. At the end, Bloom's taxonomy actually defines the objective of teaching. You know what is the objective of education? If I ask you, that there are different aims and objectives has given by different experts. If we talk about Gandhiji always talk about the holistic development of human being, and if there will be holistic development of a student, then as a teacher you are successful. And to develop holistically, you need to focus on 3H. Which are these 3H? Head, heart, and hand. And what you have to do with these 3 terms? It defines that you have to develop students' cognitive ability, their effective ability, and the psychomotor ability. Let's discuss about
Now, Bloom's taxonomy. There are three domains in Bloom's taxonomy. One is first, which is the lowest level, cognitive domain, which talks about intellectual skill. So, if we interconnect this with Gandhiji's head, Gandhiji's 3H, what first is head. So, intellectual skill is related to head. Can you understand it? Because when we talk about intelligence or intellectual skill, we know that intelligence, these are connected with head. And affective domain, it talks about attitude, it's about emotions, and emotions are connected with heart. And the top level, which is the highest level, which is called psychomotor domain, which is connected with hand. So, we can easily connect the Bloom's taxonomy's three domains of Bloom taxonomy with these principles. What Gandhiji talk about the education, as he mentioned that true development of head, heart and soul are necessary for satisfactory system of education. And Bloom's taxonomy is talking same but different way. This is head is told here as cognitive domain, the heart is told here as affective domain, and the hand is told about psychomotor domain. I hope you can understand it. If there is any query, you can comment and also mail. We will try to explain it in another way, or if there is anything problem, we will discuss it also. Next, Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy, there are three levels in three domains in Bloom's taxonomy. First, the lowest level but much more important level is cognitive domain, another is affective domain, and the topmost and the highest level is psychomotor domain. If we connect it with Gandhiji's 3H, so cognitive domain is related to head, affective domain is related to heart, and psychomotor domain is related to hand. Next, we will discuss about cognitive domain. Cognitive domain, as we know that cognitive domain is the lowest level, but it is related to the development of intellectual capacity. Yes, because it's talk about intelligence, it's cognition, it talks about the cognitive ability. So definitely it will talk about the intellectual capacity. It is core learning domain, as the next two level needs the idea about cognitive component. Yes, if we talk about the affective domain and psychomotor domain, whatever you are doing, maybe you are thinking to do something by your hand, you need to think before you do the work. And also when you are taking any decision, you need to think before it. So everything you need, it depends on cognitive domain. So we can say that the cognitive domain is the base level for these two domain. Let's discuss about the cognitive level. Cognitive domain has 6 levels, which are those levels: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. These 6 levels are in cognitive domain. Let's discuss about all these levels. Knowledge is recalling the information. Comprehension is understanding the information. Application is
apply to real life situation, analysis, ability to differentiate among the facts, synthesis, ability to make something new, and evaluation involves judgment. Knowledge recalling the information. आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको पढ़ के आप याद कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉलेज. कॉम्प्रिहेंशन, आप कुछ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, उसके बाद आप समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन. और आप जो समझ पा रहे हो वो आप अपना रियल लाइफ की सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ एप्लीकेशन. एंड एनालिसिस, व्हाट इज़ एनालिसिस? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमंग द फैक्ट. आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो अबाउट काउ. आपको काऊ के बारे में पता है. तो जब आप बहुत सारे एनिमल्स को एक जगह में देख रहे हो, तो आप अगर काऊ के बारे में जानते हो तो आप बोल दोगे ये काऊ है, बाकी ये सारे नहीं हैं. So analysis is something, the ability to differentiate among the facts, and synthesis, ability to make something new. अच्छा देखो, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने पढ़ा है पहले, बहुत सारे सोर्स से पढ़ा है. उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा है वहाँ से कुछ जीस्ट बना के मैं अपनी तरह से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना. दैट इज़ सिंथेसिस. एंड इवैल्यूएशन के साथ जजमेंट हमेशा जुड़ा हुआ होता है. एवरीथिंग, जब आप इवैल्यूएट करोगे किसी चीज़ को, उसके साथ जजमेंट जुड़ा हुआ रहता है. सो अगर मैं किसी चीज़ को अच्छे से जान पा रही हूँ तो उसके बाद मैं उस चीज़ को लेके तो जजमेंट दे सकती हूँ ना, कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, या फिर ये चीज़ ऐसा हुआ है. सो these 6 are the levels of cognitive domain. But first is knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. So हम लोगों को ये सारे हायरार्की में याद करना है. नॉलेज सबसे नीचे होगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके ऊपर एनालिसिस, एप्लीकेशन होगा, उसके ऊपर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड उसके एकदम ऊपर होगा इवैल्यूएशन. सो हाईएस्ट लेवल, अगर इस यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन, तब आपको बोलना पड़ेगा इवैल्यूएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड नॉलेज इज़ द लोएस्ट लेवल. As we told that it is hierarchical, so knowledge is the lowest level, evaluation is the highest level. I guess you all understood it. If there is any problem, you can comment in the comment section. Let's discuss about the affective domain. The affective domain is talking about the heart, the emotion. Affective domain talks about the emotional factors among the students, or if for every human being, because as the aim of education is making a good man who can serve the society, right? And it's talk about the holistic development. And here if only the intellectual part is developed, but if there is no emotional part, then we cannot make a holistic society. So with head, heart is also very important, as well as hand also. So in affective domain is related with the human emotions. This domain is related to human emotion such as love, sympathy, tolerance, cooperation, etc. This domain deals with the attitude, motivation, willingness to participate, valuing what is learned, and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life. So
Emotions are also very important, and there are 5 levels in this domain. First is receiving, then responding, then valuing, then organization, then characterization. Receiving means you are getting some information, right? Yes, being aware about something, it might be idea, materials or phenomena. So knowing about something is receiving. आप घर पे बैठे हो, बाहर कुछ चीज़ को लेके बातें चल रहा है, सो आपके कान में कुछ इन्फॉर्मेशन आया, दैट इज़ रिसीविंग. एंड रिस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग टू द फेनोमेना नोइंग और अननोइंगली. सो आप किसी चीज़ को जान रहे हो और उस चीज़ को लेके आप अपना कुछ रिएक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो या फिर कुछ रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग. वैल्यूइंग इज एबिलिटी टू सी वैल्यू इन इट एंड एक्सप्रेसिंग. हर चीज़ में आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, दैट इज़ वैल्यूइंग. पहले तो आप सुन रहे हो कुछ, अब रिसीव कर रहे हो, जो रिसीव कर रहे हो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और रिस्पॉन्ड के बाद आप उस चीज़ में वैल्यू ढूंढ रहे हो. And organization is putting the values together and make your own values. As I told you that बहुत सारी चीज़ आप सीखते हो, उसके बाद जब उस सारी नॉलेज लेके आप खुद का एक नॉलेज क्रिएट करते हो और आप उस चीज़ को डिस्कस करते हो, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट एंड टॉप मोस्ट लेवल इज़ कैरेक्टराइजेशन, विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो इंटरनलाइजेशन ऑफ योर नॉलेज एंड नेचुरलाइजेशन विद इन. मतलब अगर आप किसी चीज़ को बार बार सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, उसका नॉलेज आपके पास है, तो वो चीज़ क्या होता है ना, आप मतलब इजी हो जाता है आपके लिए करना, उसके आपके अंदर आ जाता है वो चीज़ कि आप कर लोगे, यूं ही कर लोगे. आप बहुत सारे स्किल होता है ना आप लोगों में, जो चलो ये ऐसा हुआ है तो चलो यही होगा, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे. तो ये चीज़ आपको ना नेचुरलाइज हो जाता है, आपके अंदर आ जाते हो. सो जो अफेक्टिव डोमेन का क्या है, 5 लेवल्स है. फर्स्ट इज़ रिसीविंग, सेकंड इज़ रिस्पॉन्डिंग, थर्ड इज़ वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. हमको क्या करना है, ये सारे चीज़ याद रखना है. मतलब ये तो हायरार्की में है, सो इसको हायरार्की में ही याद रखना है. क्यों रखना है, अब मैं बोलती हूँ आपको. क्योंकि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा बोलता है कि क्रोनोलॉजिकली हायरार्कली इसको मतलब आपको अरेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा. तो अगर आपको याद नहीं है किसके बाद कौन सा लेवल आएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे. तो आपको याद रखना पड़ेगा. ऐसे फर्स्ट होता है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. सो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे RTOVOC, ये ऐसे निमोनिक बना के हम लोग याद कर सकते हैं. ये निमोनिक मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने ऐसे सीखा है, तो मैं भी चाहूँगी आप लोग सीख लो. ऐसे R2VOC अगर आप याद रखोगे तो क्या है ना, ये क्या होता है कि ये फर्स्ट सारे ये जो वर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर है, उसके साथ ही आप पूरा ये 5 लेवल आप याद रख पाओगे. जैसे कॉग्निटिव लेवल में भी हम कैसे याद रख सकते हैं कि KCA2SE, ऐसे करके हम लोग ये फर्स्ट लेटर सारे याद रख के ये सारे लेवल्स याद रख सकते हैं. क्यों इसका ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए बोला जाता है. बहुत बार आया है ऐसे. आप जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे ना, तब हम देखेंगे बहुत बार आया है कि ऐसे कॉग्निटिव या फिर इफेक्टिव या साइकोमोटर लेवल का कॉग्निटिव डोमेन का सारे जो लेवल्स हैं वो सारे अरेंज करने के लिए बोला गया है. सो आई गेस आप लोगों को ये 2 डोमेन समझ में आया है. अगर कुछ दिक्कत है तो आप you can mail us, or if you wanna join the Telegram channel, there we can also discuss. In the psychomotor domain, psychomotor domain is the highest level. Yes,
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर लेवल है जो टॉप लेवल में है। साइकोमोटर, मोटर के साथ हमेशा हम लोगों को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, आगे भी ये आएगा। तो इसमें समथिंग मूविंग है ना। साइकोमोटर इट्स रिलेटेड टू हैंड, मीन्स स्किल। साइकोमोटर रिलेटेड टू हैंड, इट मीन्स स्किल। स्किल, अगर किसी चीज़ को आपको स्किल लर्न करना है, मोस्टली हम लोगों को हाथ से किसी चीज़ को लर्न करना होता है, किसी स्किल को लर्न करना है। तो अगर जैसे हम लोगों ने 3H, गांधी जी एम फॉर एजुकेशन में जो 3H हम लोगों ने जाना था, उसमें से हेड कॉग्निटिव, heart affective, and hand is psychomotor. For holistic development, for holistic development, a student's mind should be developed, his or her heart should be developed, and he or she has to be skillful. With that, we can bring the holistic development. So psychomotor domain is related to skill. It is mainly concerned with the acquisition of technical skill, क्योंकि स्किल ज़्यादा, जिसको स्किल आता है, किसी चीज़ का अगर स्किल पता है तो क्या होगा ना, उस स्किल के द्वारा वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। तो सिर्फ पढ़ना और याद रखना, जैसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बोले थे कि ये इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड था, है इंटेलिजेंस होना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको आपका इमोशंस भी बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, पर आपको अपना लाइवलीहुड भी तो अर्न करने आना चाहिए ना। उसके लिए स्किल बिल्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई गेस you understood. Let's discuss about this domain. It is mainly concerned with acquisition of technical skill. As we discussed before, there are 5 different levels in psychomotor domain. There are 5 levels. Those are imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalization. Imitation. What is imitation? It means आपके सामने कुछ हो रहा है, आप उसको देख के सीख रहे हो. That is imitation. Learner tries to follow the demonstration of someone. Who is the someone who is doing in front of the learner something, and this learner want to follow them. And manipulation. Learner tries to do in their own way. मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, या फिर जैसे हम लोग खुद को पढ़ते पढ़ते ऐसे हम लोग खुद से भी डिस्कस करने लगते हैं कि ऐसे ऐसे बोले थे मैम ने, तो ऐसे हो रहा है, पर ऐसे भी तो हो सकता है ना चीज़ें। वैसे मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आपको कहीं से कुछ नॉलेज मिला है, पर उस नॉलेज को आप अपने हिसाब से सीख रहे हो या फिर अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हो। लर्नर ट्राइज टू डू इट इन देयर ओन वे। प्रिसीशन, एक्यूरेसी कम्स थ्रू प्रैक्टिस। सोचो, आपको किसी स्किल के बारे में पता चला है, उस स्किल आप अपने हिसाब से करते हो, और आप जब अपने हिसाब से काम कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो हर रोज़, तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका काम का एक्यूरेसी बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकुलेशन। आपने तो सोचा है ना कि मैं ऐसे करूँगी, ये काम मेरा इतना इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे अब मेरा सोचो, अभी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊँगी। तो जैसे मैं बिगिनर हूँ, अभी कहीं चीज़ जाके अटक जाती हूँ मैं, कहीं आप लोगों को भी पता चल रहा होगा शायद वीडियो देख के कि कहीं जाके मैं अटक जाती हूँ। पर जब मैं हर रोज़ जैसे आपको वीडियो भेजते रहूँगी, हर रोज़ पढ़ाऊँगी आप लोगों को, क्या होगा ना, ये सारी चीज़ सरल हो जाएगा मेरा। तो मैंने एक लेवल सेट किया है खुद के लिए, वो चीज़ मैं तब जाके अप्लाई, मतलब उसको अचीव कर पाऊँगी सक्सेसफुली। मेरा जो डिज़ायर लेवल है उसको मैं अचीव कर लूँगी। दैट इज़ आर्टिकुलेशन। एंड द लास्ट इज़ नेचुरलाइजेशन। स्किल इज़ इंटरनलाइज्ड, मतलब
जब मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहूँगी तब क्या होगा ना, ये सारी चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तब क्या मैं डिफरेंट वे में इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैं नया थिंग डिज़ाइन कर पाऊँगी। जैसे अभी जैसे मैं ये मॉडल्स आपको जैसे बना के दिया है, ऐसे जैसे एक मिनट है, ऐसे ऐसे करके जैसे आपको मैं समझाने के लिए मॉडल्स बनाया है। जब आगे आगे क्या होगा कि मैं इससे जब मुझे प्रैक्टिस होता जाएगा, जब ये चीज़ पूरा इंटरनलाइज हो जाएगा मेरे में, तब मैं क्या करूँगी, इससे भी अच्छा अच्छा मॉडल्स मैं बना पाऊँगी। आई होप आप लोग समझ गए। ऐसा है साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन का क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका 5 लेवल है, जिसको याद रखने का बहुत ही इजी फार्मूला इज़ IMPAN, जो फर्स्ट लेटर से ये सारे वर्ड्स का, और ऐसे इम्पान कह के हम लोग याद कर पाएंगे। वैसे सिमिलरली इसका भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसा करके अगर एक वर्ड में एक निमोनिक से आप याद कर पाओगे तो अच्छा ही है आपके लिए। ये भी मैंने खुद नहीं बनाया है, मैंने ऐसे सीखा है, ऐसे मैंने याद किया था, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी याद कर लो ऐसे। आई होप साइकोमोटर डोमेन आप समझ पाए हैं। चलिए अभी सारे चीज़ को एक बार एक जगह में याद कर लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्या है, 3 डोमेन है। One is cognitive level domain, another is psychoaffective domain, the last one is psychomotor domain. Cognitive domain is related to Gandhiji's aim of education में head. This is with heart and this is with hand. Clear? Cognitive level का, cognitive domain का 6 levels होता है। वो क्या है, फर्स्ट इज नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन का क्या है, इसका भी 5 लेवल है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। आप मुझे फॉलो करते रहो क्योंकि ये हैंडराइटिंग बहुत बदतर हो रहा है, मुझे भी पता है। तो आप ये सारी चीज़ मेरे साथ जैसे मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को आप नोट बना लो। इसके बाद लास्ट है और हाईएस्ट लेवल है, वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को हमने क्या निमोनिक दिया था कि इम्पान, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, है ना इम्पान। सो क्या है, इसमें मेरा हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हुआ है, तो आप लोगों को जैसे मैंने बोल दिया है उस चीज़ को लेके आप लोग नोट्स बना लो। एक्चुअली खुद का नोट्स बनाओ, हर रोज़ बनाओ। उससे क्या होगा ना कि देखो आज आपका क्लास आया है, आप आज पढ़ रहे हो, तो क्या है ना, कल जाके अगर आज ना हो पाए तो कल फिर से एक बार ये वीडियो देख लो और उसके साथ साथ अपना खुद का नोट्स याद कर लो। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा ना, ये वीडियो ये कुछ भी आपको याद नहीं आएगा, पर आपने खुद का जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं ना, वही चीज़ आपको आपको पढ़ना है और उसी चीज़ में इससे पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि टाइम कम होगा अगर सिर्फ हम लोग सोशल वर्क स्टूडेंट को ही फोकस करें। इधर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वर्किंग और कुछ होगा जो पढ़ रहे हैं, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, तो हर सब कुछ संभाल के अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम के पहले आपको 1 महीना सिर्फ छुट्टी मिल जाएगा, ये सब कुछ दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मिलता नहीं है ऐसा इतना छुट्टी ये सब कुछ। तो क्या है, हर रोज़ वीडियो को देखो, अपना नोट्स बना लो, नोट्स बना के रखो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको मेल कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको पेपर 1 और पेपर 2 सोशल वर्क एंड पेपर 2 वुमेन्स स्टडीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा टाइमली। और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए तो आप लोग स्पेसिफिकली एक जगह में हर चीज़ पढ़ पाएंगे।
आज हमने पढ़ा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 लेवल होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन इज़ अबाउट इंटेलेक्चुअल स्किल, अफेक्टिव इज़ एटीट्यूड एंड साइकोमोटर डोमेन इज़ अबाउट मोटर स्किल। एंड इसके साथ जो गांधी जी एम ऑफ एजुकेशन में जो 3H हुआ था, दिया गया था कि हेड, हार्ट एंड हैंड, उसको भी हम लोगों ने कनेक्ट किया है। एंड उसके बाद जो कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन का जो लेवल्स है, उस सारे लेवल्स को हम लोगों को याद करना पड़ेगा। वो निमोनिक्स के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, आपको याद करना पड़ेगा और इसको अरेंज करना है। तो हर चीज़ एक के बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और ये चीज़ हायरार्की में ज़्यादा पूछा जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस डोमेन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन साइकोमोटर डोमेन। तो आपको ऐसे 5 दिया जाएगा, तो आपको उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, ऐसे कि नेचुरलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन एंड द लोएस्ट लेवल इज़ इमिटेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आप लोग पढ़ते रहिए, हर रोज़ पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद हो तो लाइक कर दीजिए। किसी चीज़ में कोई दिक्कत है या फिर आपको क्लास अच्छा लगा, कुछ भी हो तो कमेंट दीजिए और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छे से हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।